अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान इम्तियाज़ है एंड आई थिंक अभी तक मुझे किसी ने ज्वाइन नहीं किया। अगर आप लोग ज्वाइन करते जाएं तो कमेंट करते जाएं ताकि मुझे पता चले दैट यू गाइस हैव एक्चुअली जॉइंड द वीडियो, सो आई कैन प्रोसीड विद दैट। And if you guys can hear me, please let me know. If you guys can hear me or if anybody has joined, just let me know. Okay. हुज़ैफ़ा joined. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो हुज़ैफ़ा, ठीक हो? So apparently guys, I am in Europe right now and I'm on Erasmus Mundus scholarship and I hope मेरी आवाज़ ठीक आ रही है and there's no distortion with the voice. हुज़ैफ़ा, can you confirm? अच्छा जी, तो मैं ये स्टार्ट कर देता हूँ। अपेरेंटली फिर बाद में ठीक है, अपेरेंटली बाद में फिर जो है मेरी वॉइस अभी तो ठीक आ रही है ज़ाफ़ा के अकॉर्डिंग। I will later on then edit the YouTube version because I apparently cannot go live on YouTube today. There is some reason. Erasmus Mundus स्कॉलरशिप जो होती है ना, बेसिकली एक यूरोपियन यूनियन की स्कॉलरशिप है। But delving into this, before I delve into this, I'm gonna go ahead and introduce myself. मेरा नाम मोहम्मद उस्मान इम्तियाज़ है and I'm a graduate pharmacist from Pakistan from University of Health Sciences under the University of Lahore Pharmacy College, that is now known as University of Biological and Applied Sciences, known as also UBAS. So I've graduated there from the university with a CGPA of 3.4%, and I've also had pretty vast extracurricular activities also. So you must be thinking that it was very easy to get a scholarship or maybe luck चल गई है, but ऐसा नहीं है. You have to work hard on your applications and all. So this is a very short introduction of me, and currently I am studying in the cohort under the umbrella of Karolinska Institute, Sweden, and we have other two universities, including the first one where I will be studying my introductory semester that I'm actually studying these days. It is Oviedo University, Spain, and the second one is Nicosia Medical School, Cyprus, where I'm gonna study my third semester and I'm gonna do my research internship there as well. Also इस चीज़ के बाद बेसिकली ये डिग्री मेरी है पब्लिक हेल्थ इन डिज़ास्टर, एंड
इसमें ज़्यादातर आप पब्लिक हेल्थ और ह्यूमैनिटेरियन रिस्पांस टीम्स जो होती हैं उनके साथ काम करते हैं आफ्टर यू आर डन विद दिस मास्टर्स. So I guess this was it about my introduction. Let's move to the main topic for the day, which is the application and procedure for the Erasmus Mundus Scholarship. तो Erasmus Mundus Scholarship जो है बेसिकली यूरोपियन यूनियन से फंडेड स्कॉलरशिप होती है. बीइंग अ पाकिस्तानी आप लोग यूरोप की स्कॉलरशिप में अगर जाना चाहते हैं एंड यू थिंक दैट यू हैव दैट मच कैपेबिलिटी, आई थिंक हर किसी की होती है. इट्स जस्ट दैट हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर ऑन योर प्रोफाइल, दैट इज द मेन पार्ट. अगर तो आपको लगता है दैट यू कैन डू इट, आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई. वैसे भी पैसे लगा कर जाना है तो वाई नॉट गिविंग अ ट्राई ऑन अ स्कॉलरशिप, मे बी चल जाए लक, यू नो. एंड इसके लिए जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो ज़्यादा कुछ नहीं है. You just need a very good polished CV, and you need your IELTS if you can have it, because IELTS does add 10% of weightage to the overall profile, overall application, because it really depends if you have IELTS with you. And उसके बाद आई थिंक हाँ ये चीज़ें चाहिए होती हैं. If you have research, that's very good. If you don't have it, I mean, that's not a bad thing. But apparently मैंने जो नोट किया है वो ये है कि रिसर्च को भी एक वेटेज मिल रही है इस पॉइंट पे आके, क्योंकि आई थिंक हम लोग सभी बैचलर्स कर रहे हैं एक तरह से. अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज काइंड ऑफ अ बैचलर्स, so it's actually a bachelor's, whether you're a pharmacist, whether you're a physiotherapist, or whether you're any other guy, other person. I think having a research with this really depends a lot. ठीक है, तो मुझे एक सेकंड दीजिएगा. ठीक है, आई एम बैक. ओके, सो मैं बता रहा था कि एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप बेसिकली यूरोपियन यूनियन से फंडेड स्कॉलरशिप होती है, और ये यूरोपियन यूनियन की दी ओनली फंडेड स्कॉलरशिप है. ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास अब ऑलमोस्ट 200 प्लस प्रोग्राम्स आ जाते हैं, विच आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन ऑन. अपेरेंटली स्क्रीन शेयरिंग तो मुश्किल है थोड़ी सी, बट आई विल बी doing something to show that. एक मिनट दीजिएगा बस मुझे. ठीक है, I can show you guys from my computer screen. फ़ोन के थ्रू दिखाऊंगा मैं, क्योंकि apparently I don't know what's going on with my laptop. इश्यूज शुरू हो गए हैं इसके फिर से. अच्छा, इसके अंदर ना आपके, मैंने जैसे सीवी की बात की है, सीवी के अंदर आपके पास मेजर जो पोर्शंस होते हैं वो होता है आपके पास आपका नाम लिखा हो, आपकी नेशनैलिटी होनी चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है, एड्रेस लिखा हो, मेल फीमेल लिखने की भी ज़रूरत नहीं है. दैट डजंट मेक एनी सेंस बिकॉज यू विल हैव योर पिक्चर, एंड आई थिंक इट्स वेरी अनप्रोफेशनल टू ऐड अननेसेसरी डिटेल्स इन द सीवी. सीवी में जितनी अननेसेसरी डिटेल्स होंगी, जितनी इररेलेवेंट डिटेल्स होंगी, कंसिडर योर सेल्फ आउट. सीधी सी बात है. कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है. अपेरेंटली जिस प्रोग्राम में मैं आया हूँ, देयर वाज मोर देन 1000 एप्लीकेशंस. आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट इट वाज वे अबव 1000. अब खुद सोचो, 1000 बच्चे आ रहे हैं, जिसमें से पाकिस्तान में से भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं. यू हैव टू स्टैंड आउट. कोई ना कोई फ्लॉ होता है सबका सीवी के अंदर. मेरा फ्लॉ जीपीए था. 3.4 is not considered a good GPA. Even 3.5 is not considered a good GPA. Then you need to polish your CV in a way that makes you stand out of the queue. अगर आपका सीवी का ही पार्ट खराब जा रहा है तो प्रोफाइल मेन उन्होंने स्टडी वहाँ से करनी है. एलओएम मैटर ही नहीं करेगा उस पॉइंट पे.
जो चीज़ मेन मैटर करती है इन लोगों के अकॉर्डिंग वो होती है आपकी सीवी। मुझे कुछ बच्चों ने ये भी पूछा था कि हमें ना LOM का बताएं। भाई LOM लिखने का फ़ायदा नहीं है अगर सीवी पॉलिश नहीं है। LOM देखो, यूरोपियन जो बंदे होते हैं ना, उनको अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं आती है जैसी हम सोचते हैं। दे आर नॉट नेटिव स्पीकर्स, they are speaking it as a second language the way we speak in Urdu, या let's just suppose any other language. We take English as natives, as Pakistani, which apparently doesn't make any sense, but other people do not take it that way. वो इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज ही लेते हैं यूरोप के अंदर। LOM वगैरह जो भी होता है वो अगर आप उनको अपना बेसिक से इंट्रोडक्शन भी लिख के देंगे उनको पसंद आएगा। मेजर जो पोर्शन होता है वो आपका सीवी का पार्ट होता है। अब सीवी के अंदर मैं आपको बता रहा था कि यू नीड टू हैव, यस, यू नीड टू एक्चुअली हैव लाइक योर नेम, डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है, मेल फीमेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड योर एड्रेस, एक पिक्चर ब्लू बैकग्राउंड के अंदर, प्रोफेशनल पिक्चर, सेल्फी या डीपी लगाने की ज़रूरत नहीं है सीवी के अंदर। दैट अपेरेंटली मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बेवकूफ़ होगा कि इस पॉइंट पे आके वो ऐसी हरकत करे, बट आई हैव सीन सीवीज जहाँ पे लोगों ने क्या किया है कि प्रॉपरली एक डीपी लगा दी है सीवी के अंदर। भाई आप ब्लू बैकग्राउंड वाली पिक्चर लगा लो, वाइट बैकग्राउंड लगा लो, आपने तो पूरा सेल्फी सिस्टम अगर करना है सीवी के अंदर वो सही नहीं है चीज़। नाम के साथ आपका लिंक्डइन का लिंक होना चाहिए। अच्छा, लिंक्डइन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट कैन मेक यू स्टैंड आउट इन एरास्मस। कोई बात नहीं करेगा इसके ऊपर, ये मेरा अपना एक एक्सपेरिमेंट था एंड इट वर्कड। लिंक्डइन के ऊपर आपने रेलिवेंट टू द प्रोग्राम दैट यू हैव अप्लाइड, यू हैव टू पोस्ट थिंग्स रेलिवेंट टू दैट। अब इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्टली उसी को टारगेट करके पोस्ट करो, ऐसे पता चल जाता है कि आप क्या कर रहे हो। आपने उस सब्जेक्ट के अंडर ऐसी चीज़ें पोस्ट करनी है जो जनरल बेसिक नॉलेज देने वाली बातें होती हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वैक्सीन्स होते हैं, ठीक है, आप वैक्सीन्स के बारे में कोई भी जनरल इन्फो टाइप कुछ शेयर करें, उसमें हैशटैग्स के अंदर जो उस प्रोग्राम का नाम यूज़ कर लें, लाइक कीपिंग इट वेरी लो फ्रेम। आपने उसको एकदम से हाईलाइट करके नहीं शो कराना कि मैंने यह काम किया है। दूसरी चीज़, आपने लिंक्डइन का लिंक ऐड किया, उसमें आपने अपना ईमेल ऐड किया उस पहले पोर्शन के अंदर सीवी में। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको अपनी ना सीवी दिखा दूँ, थोड़ा सा आइडिया देने के लिए एक पोर्शन दिखाऊंगा मैं। अच्छा, उसके अंदर ये भी है कि अब आपने लिंक्डइन का लिंक दिया, आपने अपनी ईमेल दी, मेक श्योर यू हैव अ प्रॉपर ईमेल। पापा की परी और पापा का परा करके ईमेल नहीं लिखनी है वहाँ पे, जैसी ईमेल्स बच्चों ने बनाई होती हैं यूजुअली। मेक अ प्रोफेशनल ईमेल विद योर नेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी मुझे कौन देख रहा है, अली बासिम इज़ वॉचिंग मी राइट नाउ। अली, आपने अपनी फॉर एग्जांपल ईमेल बनानी है तो अली और अपना डेट ऑफ ईयर जो है, डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है, फॉर एग्जांपल 1998 है तो अली 1998 या ali.1998@gmail.com, सिंपल। अब अली अगर ऐसी ईमेल बना दे ali.don@gmail.com तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, ठीक है। इस तरह की ईमेल्स नहीं आपने मेंशन करनी। ज़िशान, बस कर दो ज़िशान, क्या हो गया। अच्छा, उसमें फिर आपके पास ये चीज़ आ गई है ईमेल, एक प्रोफेशनल ईमेल होना चाहिए, आपका लिंक्डइन का लिंक होना चाहिए, दैट शुड बी रियली अपडेटेड। आपने अपनी पब्लिकेशंस का बताना होता है लिंक्डइन पे कि मैंने ये पब्लिकेशंस की हैं मैंने। अच्छा, उसके बाद आपके पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, एंड आई थिंक अपर पार्ट जो सीवी का होता है ना, नाम, जहाँ पे साथ पिक्चर है, प्रोफेशनल ब्लू या वाइट बैकग्राउंड, साथ लिंक्डइन का लिंक है, साथ आपका ईमेल है, साथ आपका कॉन्टैक्ट नंबर है और साथ आपका एड्रेस है। नेशनैलिटी लिखनी है तो लिख लो, बेहतर है। उसके बाद आपके पास आदत है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट अप्लाइंग अ जॉब, यू आर अप्लाइंग फॉर एन एकेडमिक पोजीशन इन अ डिग्री। यू डोंट नीड ऑब्जेक्टिव इन योर सीवी। सबसे पहला पार्ट आपकी सीवी में होना चाहिए विद द नेम, विद द नेम ऑफ एजुकेशन, ठीक है।
सबसे पहले पार्ट जो आपका स्टार्ट होता है सीवी के अंदर, वो उसके बाद आपका ये नाम और डेट ऑफ बर्थ और ये नाम और लिंक्डइन का लिंक वगैरह सब ऐड कर लिया अपर पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट जो आपका स्टार्ट होना है ना, जहाँ से डिटेल शुरू होती है, वहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास। एजुकेशन में आपने अपनी डिग्री का नाम लिखा, नीचे साथ आपने अपना CGPA मेंशन किया। उसके बाद आपने जो चीज़ मेंशन करनी है वो है रेलेवेंट कोर्सेज। अब रेलेवेंट कोर्सेज क्या हैं? रेलेवेंट कोर्सेज वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, जो कि आपने अपनी डिग्री में पढ़े हैं, रिलेटेड टू द मास्टर्स दैट यू आर अप्लाइंग. So relevant courses are not any courses that you'll write, but the subjects that you have studied in your pharmacy, and it's related to the program through the degree that you're applying. ठीक है, ये बड़ा एक सिंपल सा करके मैंने बता दी ये चीज़। अगर कोई पोजीशन आई हुई है, लाइक एक दो दोस्त हैं मेरे जो जिनको मैं जानता हूँ जिनकी पोजीशंस थी UHS के अंदर, दे कैन ऐड देयर पोजीशंस एज वेल। ठीक है, वो लिख सकते हैं कि मेरी ये पोजीशन है ये, बट यू नीड टू हैव अ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ वट एवर यू आर राइटिंग इन द CV। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है एजुकेशन के बाद आपका, आई थिंक अगर न्यू ग्रेजुएट हो तो ज़्यादा सेंस तो ये बनेगी कि प्रोजेक्ट्स एंड पब्लिकेशंस वाली हेडिंग डालो। अब बड़े बच्चे होंगे जिनकी पब्लिकेशन नहीं है, बट उन्होंने किसी न किसी रिसर्च में किसी टीचर के साथ काम किया होता है इन टर्म्स ऑफ डेटा कलेक्शंस, you can mention that topic, but you also have to mention that you only did data collections, you did nothing else. ठीक है। सेकेंडली, प्रोजेक्ट्स वाला पार्ट पूरा करके, या वर्क एक्सपीरियंस तो सेंस नहीं बनती अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है। मोर सेंस तो ये बनेगी कि आपने सबसे पहले उसके अंदर जो ऐड किया वो प्रोजेक्ट्स की एडिंग ऐड की, बिकॉज यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट। ठीक है, फिर पब्लिकेशंस आ गई, वो मेंशन कर दी। पब्लिकेशंस वाले पार्ट के अंदर आपने हेडिंग के नीचे DOI होता है हर पेपर का, वो मेंशन करना होता है। ठीक है, एंड यू कैन यूज अ हाइपरलिंक टू राइट डाउन द टाइटल ऑफ द पब्लिकेशन, सो व्हेनेवर हूएवर क्लिक्स द टाइटल ऑफ द पब्लिकेशन सेक्शन तो वो वहां पे पहुंच जाएगा जो आपकी पब्लिकेशंस हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है पोर्शन वर्क एक्सपीरियंस। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन होगी यहाँ पे कुछ बच्चों को, जिन्होंने मुझे कुछ लोगों ने पूछा भी है कि भाई वर्क एक्सपीरियंस वाले पार्ट में क्या ऐड करना है। वर्क एक्सपीरियंस में आपकी इंटर्नशिप्स भी आती हैं। वर्क एक्सपीरियंस के अंदर आपकी कोई क्लर्कशिप है जो ड्यूरिंग डिग्री आपने कोई अगर रोटेशन की हुई है हॉस्पिटल की, वो भी उसमें आ जाती हैं। आपका अगर वाकई ही कोई वर्क एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग योर डिग्री, यू कैन मेंशन दैट एज वेल. It is accepted because they know that you're a fresh graduate, so you're mentioning the internship or the work experiences you had during your degree, so it makes sense, it's no problem. उसके बाद आपके पास एक सेक्शन आता है अवार्ड्स एंड ऑनर्स का। अब उसके अंदर जनरली आपने वो चीज़ें ऐड करनी है, लाइक पोजीशन आई थी या कोई अवार्ड मिला था या कोई अप्रिसिएशन मिली थी, उसका सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, कंपनी से मिला हो बेशक, एंड ड्यूरिंग योर स्टडीज ही मिला हो, कोई मसला नहीं है। Whatever it is, you can add it there, but the only condition is that proof होना चाहिए। मांगेंगे, झूठ लिखोगे, ब्लैकलिस्ट हो जाओगे, ये भी एक चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद आपके पास स्किल्स वाला सेक्शन है, वैसे ही जैसे जनरल होता है स्किल्स वाला आ गया, उसमें अपना एक दो स्किल्स रिसर्च के लिख दिए, एक दो एक्सेल के, वर्ड के, जो भी आप मतलब यूज करते हो वो आ गया, एंड दैट्स इट। या हाँ, सॉरी, वॉलंटियरिंग और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी यू हैव टू ऐड देम। आई थिंक अपेरेंटली इतना ही होता है, और तो एज सच नहीं होता कुछ। हाँ, यही चीज़ें होती हैं CV के अंदर। और उसके बाद बेसिकली एक पोर्टल होता है एरास्मस मंडस का। अब एरास्मस मंडस की वेबसाइट तक तो बहुत बच्चे पहुंचे होंगे, बट नोबडी न्यू के प्रोग्राम कहाँ से ढूंढे, मिल नहीं रहा वगैरह वगैरह। अच्छा, आई एम गोना डू माय कैमरा दिस वे, एक सेकेंड। ओके, सो ये वेबसाइट है।
ठीक है, it is erasmus+.ec.europa.eu। गूगल पे जाके एरास्मस मंडस कैटलॉग भी लिखोगे ना तो मिल जाएगा, यही पहली वेबसाइट होगी। सो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करें, दिस इज द कोर्स कैटलॉग। ठीक है, सर्च द कोर्स कैटलॉग। अब इसमें आपने थोड़ा सा नीचे आना है तो यू कैन सी द मास्टर्स हेयर। ठीक है, अच्छा ये वाला न्यू आया फिर इस साल, यूरोपियन मास्टर्स इन एनिमल बायोडाइवर्सिटी एंड जीनोमिक्स। दिस इज अ वेरी गुड मास्टर्स, ये न्यू है इस साल। अब लेट्स सपोज मेरा जिसके अंदर हुआ है, मैं वो लिखता हूँ, पब्लिक हेल्थ इन डिजास्टर। वैसे मैं आपको कहूँगा कि ये यूज़ नहीं करना, आपने इन हेडिंग्स को वन बाय वन सबको देखना है, तो जो रेलेवेंट लगती हैं अप्लाई इन देम। यू डोंट हैव टू यूज़ द फिल्टर यूज़ ना करें तो बेहतर है। अच्छा, इट्स अपेरेंटली टेकिंग सम टाइम, तब तक लोड होता है। अब आई वांटेड टू सी इफ देयर आर ओनली 8 पीपल वाचिंग मी अभी तक। एक मिनट दीजिएगा बस मुझे। अच्छा, मज़े की बात ये है कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्कॉलरशिप्स। बहुत लोगों को नहीं पता इसके बारे में, एंड यू शुड एक्चुअली गो फॉर दिस। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, सो मीनवाइल आई कैन आंसर दैट। जब तक ये वेबसाइट लोड हो रही है, आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस और वट एवर यू वांट टू आस्क। ओके, सो किसी का कोई सवाल नहीं है अभी तक? ओके, अच्छा, दिस इज द थिंग। ये यहाँ पे आपने क्लिक करना होता है, ये हेडिंग जहाँ पे आ रही है ना, यू डोंट क्लिक दिस, यू क्लिक दिस अपर वन। इसको क्लिक करेंगे तो यू स्ट्रेट अवे रीच टू द वेबसाइट ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, सब में ही ऐसे है। अच्छा, सीवी के अलावा और क्या ज़रूरी है? ठीक है, सीवी के अलावा यार कुछ इंपॉर्टेंट एज नहीं होता, सीवी ही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि आपके पास इन्होंने ये इस तरह से ना एक पोर्टल बनाया होता है। लेट मी शो यू, लोड हो गया। ओके, ये देखो, अब ये प्रोग्राम की वेबसाइट लोड हो गई। तो यहाँ पे ना एप्लीकेशन पीरियड जब ये आ रहा है ना, अभी ये वाला, तो ये जब ओपन होगा ना तो यहाँ पे आई कैन क्लिक एंड आई इट विल शो मी अ बटन टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन एंड आई कैन फिल दैट एप्लीकेशन। चीज़ें उसमें उन्होंने बड़ी बेसिक पूछी होती हैं, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जगह कहाँ पे हो, रहते कहाँ पे हो, यू नो, एंड करना क्या है, वगैरह वगैरह। वो चीज़ें आपसे रेलेवेंट पूछते हैं कि आपकी डिग्री किस चीज़ की थी, कहाँ से की है, डिग्री में जीपीए कितना है, वही बातें पूछेंगे जो सीवी में लिखी हुई हैं। ठीक है, मेन पार्ट वो आपकी सीवी को स्टडी करते हैं। दे डोंट स्टडी एनीथिंग एल्स बट दे स्टडी योर सीवी एंड योर लेटर ऑफ मोटिवेशन, अगर उसकी लेंथ उन्होंने उसमें उतनी मांगी हुई है। अगर तो उन्होंने सीवी में लेंथ, मतलब एलओएम की लेंथ छोटी गई है, जैसे मेरा जिस प्रोग्राम में मैं आया हूँ ना, पब्लिक हेल्थ एंड डिजास्टर में, उसके अंदर उन्होंने एलओएम की जो वर्ड काउंट दिया हुआ था वो बेसिकली 250 वर्ड्स का दिया हुआ था।
250 वर्ड्स इज नथिंग. 250 वर्ड्स में लिटरली आप अपना इंट्रोडक्शन लिखोगे ना, 250 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे. अब सोचने वाली बात थी कि भाई LOM तो इतना छोटा मांगा है तो मैं क्या करूं. What I did was that I refined my CV, I repolished my CV, and apparently that made me shortlisted. तो ये बेसिकली सारी एक चीज होती है, CV and your LOM that matters only in Erasmus. But again, you have to add only those things in your CV that you have a paper, that you have a justification for, that you have a certificate for. झूठ या खुद से कुछ भी लिखोगे फंस जाओगे बाद में. अच्छा, संजना ने लिखा है, I was looking for samples of your CV and most of them have work experience section and then education. नहीं, sequence doesn't really make a difference, but you have to show the most relevant one first. देखो, एक CV है, अब उनके पास एक CV नहीं आ रहा, उनके पास hundreds of CVs आ रहे हैं, इनफैक्ट thousands आ रहे हैं. How they will shortlist you? They will shortlist you based on the relevancy that you have written regarding that program and with your work. For example, मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस है वो क्लिनिकल एंड ह्यूमैनिटेरियन दोनों साइड्स पे था. मैंने थोड़ा सा मोल्ड किया अपने वर्क एक्सपीरियंस का एंड आई रोट कि मैंने ह्यूमैनिटेरियन को पहले मेंशन किया बिकॉज मैंने प्रोग्राम को स्टडी किया हुआ था. इट हैड मोर पीपल, इट नीडेड मोर पीपल फॉर ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस विच अपेरेंटली आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ. मैंने उसको पहले मेंशन करा. इनफैक्ट एक सेक्शन शो किया एजुकेशन का जिसमें हेल्थ की डिग्री इंपॉर्टेंट मांगी थी उन्होंने, वो शो कर दिया. उसके बाद मेरा जो सेकंड था वो यही था कि आई स्टार्टेड टेलिंग देम अबाउट माय वर्क, फिर प्रोजेक्ट्स, फिर वर्क एक्सपीरियंस. लेकिन सीक्वेंस ओवरऑल इतनी कोई वो डिफरेंस इतना कोई क्रिएट नहीं करता. इट रियली डजंट मैटर एट दिस पॉइंट. आई मीन आपके पास है चीज़ें, उन्होंने एक नज़र देखना ज़रूर आपकी CV को, तो it doesn't make any difference. Also, do you have any idea if they prefer a one-page CV or longer one? Because mine would be अच्छा नहीं, देखें डिपेंड करता है. हर प्रोग्राम का CV का जो लेंथ होता है वो उन्होंने लिखा होता है. कोई आपको इक्का दुक्का प्रोग्राम्स मिलेंगे इस तरह के, एक दो मिलेंगे इस तरह के जिनमें दे हैवंट मेंशन्ड एनी लेंथ फॉर CV, ठीक है. बट उसमें भी कोशिश करें 2 से 3 से ऊपर नहीं जाना. कोशिश करनी है, मैक्स कोशिश करें 2.5-3 पेज से नीचे CV रखें अपनी एंड रिलेटेड रखें, ठीक है. इसमें जो है ना वो जितने ज़्यादा लेंथ CV की करोगे उतना प्रॉब्लमेटिक होगा उनके लिए स्टडी करना है. देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू बिकॉज दे वॉन्ट बी इंटरेस्टेड एनी मोर. ये भी बात को ध्यान रखना है. तो आई होप संजना आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. हाशिर ने ऊपर पूछा था, सॉरी हाशिर मैंने आपका देखा नहीं नाम. You asked that did you take IELTS? Yes, I took IELTS and I had a pretty good band score in it. It was, if I'm not wrong, it was 7.5. And you also asked, please share some tips regarding LOR writing, as in most of the cases the instructors do not write the. यार मैं सही बताऊं, मैंने AI से थोड़ी सी हेल्प ली थी LOR लिखवाने में. हाँ शेर, मैंने LOR लिखते हुए AI से थोड़ी सी हेल्प ली थी एंड आई थिंक हो जाता है यार. जो चीज़ें की हुई हैं ना, जो यू थिंक दैट मेड मोर सेंस, दैट इज़ मोर रेलेवेंट टू द डिग्री दैट यू आर अप्लाइंग, वो बातें लिख के अपने प्रोफेसर से साइन करवा लो. AI बीच में आप इंटीग्रेट कर सकते हो चीज़ें, लेकिन बट मेक श्योर यू डोंट कॉपी पेस्ट. क्लेवरली यूज़ करें, हेल्प लें. There's nothing wrong in taking help from the AI, but you have to make sure you do not copy paste anything. I hope हाशिर मेरी बात आपको समझ आ गई है. Okay, so then we have Abu Bakr Farooq. I'm in 4th year pharmacy. आप क्या recommend करते हैं मुझे 5th year में क्या steps follow करने चाहिए रिगार्ड्स का? भाई पहले 5th year तो निकालो. 5th year is one of the toughest years of pharmacy and it's good you're focusing on the scholarship, but I would highly recommend you कि पहले अपना 5वां साल निकालो क्योंकि वो टफ हो जाएगा. 2 थीसिस होते हैं फार्मेसी के अंदर, फाइनल ईयर के अंदर 2 थीसिस करो. पहले IELTS की तैयारी करो मीनवाइल,
अभी अगर पूछ रहे हो ना क्या स्टेप्स फॉलो करना चाहिए, वर्क ऑन योर रिसर्च प्रोफाइल एंड वर्क ऑन योर प्रिपरेशन फॉर द आइल्स। आई वुड से दिस, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये दो चीजें कर लेता। ओके, तो किसी और का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग एरास्मस मंडस, लाइक बेसिक्स या कुछ भी, जो भी पूछना है यू कैन आस्क। एंड जस्ट सो दैट यू गाइज नो, मैं इंशाल्लाह आज में या कल में यूट्यूब के अपने चैनल पे भी जो मैंने लिंक शेयर किया था आप लोगों को, मैं उस पर भी एक रिकॉर्डेड वीडियो प्रॉपर डालूंगा एंड इट विल बी सेम सिमिलर थिंग्स, आई विल बी टेलिंग सिमिलर थिंग्स। The only difference is आज I'm starting live with my first video and then I would be putting on recorded session. किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट लिख के पूछ लें, so I can tell them about it or answer their question. अबू बकर, अगर आपको समझ आ गया और हाशिरा आपको भी अगर मेरी बात समझ आई है तो कमेंट कर दें ताकि मुझे पता चल जाए दैट यू गाइस कैन हियर मी। अरे हुजैफा सही तो बता, पूरी डिटेल तो दे रहा हूँ यार, और क्या मैं बोलूँ। देखो, मैंने तुम्हें एक पोर्टल दिखाया था अभी एरास्मस मंडस का, इफ़ यू सीन इट। उसके अंदर मैंने आपको दिखाया कि प्रोग्राम्स हैं डिफरेंट जिसमें भी अप्लाई करना है उसके हेडिंग पे क्लिक करो, वो तुम्हें उसकी वेबसाइट पे ले जाएगा। उस वेबसाइट पे जब एप्लीकेशन की डेट्स ओपन होती हैं देन यू कैन अप्लाई। ठीक है, अब इस चीज़ का चेक रखना तुम्हारा काम है कि कौन सी एप्लीकेशन कब ओपन हो रही है। बट लेट मी ब्रेक इट टू यू गाइस, Erasmus is about to actually commence for the year 2025 to 2027, 2026 to 2028। हाँ, वो जो आपने हुज़ैफा देखा है ना, इसी तरह से प्रोग्राम्स हैं, वो सारी लिस्ट थी पूरे मास्टर्स के प्रोग्राम्स की उस वेबसाइट पर जो एरास्मस स्कॉलरशिप देते हैं। उसमें आपका ऐसे होता है कि एक सेमेस्टर आप एक मुल्क में पढ़ते हो, दूसरा आप दूसरे मुल्क में पढ़ते हो, तीसरा तीसरे में, और चौथे में यू विल हैव ईदर चॉइस, और चौथे मुल्क में पढ़ोगे। एरास्मस बेसिकली मोबिलिटी मास्टर्स होते हैं जिनके अंदर जॉइंट मास्टर्स डिग्री होती हैं या ड्यूअल मास्टर्स डिग्री होती हैं। ठीक है, ये सिंपल से वो नहीं है, सीधे सीधे मास्टर्स नहीं है, ये बड़े माइक्रो डिसिप्लिनरी बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक हेल्थ नहीं करा रहे, पब्लिक हेल्थ इन डिजास्टर करा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा तो ज़्यादा वो माइक्रो लेवल पे जा रहे हैं। देन दे हैव लाइक इनोवेटिव मेडिसिन, ड्यूअल मास्टर्स ऑफ इनोवेटिव मेडिसिन। अब उसमें बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चों को भी बड़ा वो एडमिशन दिया उन्होंने लास्ट ईयर। फार्मेसी वाले बड़े रिजेक्ट भी हुए हैं, लेकिन फार्मेसी से लड़कियां एक्सेप्ट भी हुई हैं पाकिस्तान से। सो इट रियली डिपेंड्स ऑन विच प्रोग्राम, ऑन विच मास्टर्स यू वांट टू अप्लाई। वो पूरी एक लिस्ट होती है एरास्मस की, वो जो मैंने आपके सामने लिस्ट खोली थी उसके अंदर सारे नाम लिखे हुए, कोई 220 नाम है। अब वो डिफरेंट मास्टर्स की डिग्री हैं जो एरास्मस स्कॉलरशिप दे रही हैं। किसी एक की हेडिंग पे क्लिक करो जो तुम्हें पता चलता है कि यार ये मेरे रिलेटेड है, इसमें मैं अप्लाई करता हूँ। याद रखो यार, एरास्मस का मतलब है रेलेवेंसी। एरास्मस, इफ यू वांट एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप means you have to be highly relevant to the program, to the masters that you are applying. सिंपल सी बात है, सिंपल सी स्टोरी है, इट्स नथिंग मोर देन दैट। एंड हाउ विल यू शो दैट रेलेवेंसी? इट्स थ्रू योर CV, दैट्स इट। इट्स थ्रू योर LOMs, इट्स थ्रू योर CV। LOM जो होता है लेटर ऑफ मोटिवेशन, उसका a person I know copy pasted AI generated content in Coursera assignments. He intends to use those certifications in CV. साइम अहमद, साइम भाई आप ही हैं मेरे सीनियर जो थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैंने सही पहचाना तो साइम भाई मेरे सीनियर है फार्मेसी के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
साइम भाई सीन ये है कि देखें इट्स फाइन, कुछ मसले वाली बात नहीं है, बट अगर एक चीज़ की है तो इतना नॉलेज उसका ज़रूर रखो कि अगर इंटरव्यू तक पहुंचते हो तो उसको कवर कर सको। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, बट ठीक है कर सकते हो, बट यू शुडंट डू दिस। कोर्सेरा की इंटेग्रिटी ख़त्म हो जाएगी और कोई बच्चा अप्लाई करेगा तो उसके कोर्सेज नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये लोग, अगर उनको ये बात पता चलेगी तो बी केयरफुल और इसको ओपनली डिस्कस नहीं करें। अच्छा हुजैफा, कम से कम आइल्स में कितने बैंड हो यार? 6.5 तो मिनिमम चाहिए एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एज ए मेडिकल ग्रेजुएट 6.5 मिनिमम इज अ मस्ट। भाई अंग्रेजी नहीं आती है, नहीं कर सकते स्कॉलरशिप में अप्लाई। सिंपल एक ना सिंपल सी चीज़ है वो, क्योंकि मेडिसिन पढ़ के भी अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही है तो फिर यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ ना, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की फिर ज़रूरत है हमें। मुझे खुद भी कोई बड़ी अंग्रेज़ी नहीं आती, मैं बहुत बड़ा कोई अंग्रेज़ नहीं हूँ, बट एटलीस्ट यू शुड हैव दैट मेनी बैंड्स कि अपने आप को जस्टिफाई कर सको ना कि भाई मुझे एक चीज़ आती है। अच्छा बुकर ने पूछा है जीपीए और मार्क्स मैटर? यस, किसने कहा नहीं करती हैं भाई, अच्छा खासा मैटर करती हैं, बट अगेन वही बात है, 3 से ऊपर ठीक है, यू हैव अ शॉट, यू कैन गिव इट अ शॉट नाउ। आपके अगर 3 से ऊपर जीपीए है दैट मीन्स यू आर एलिजिबल एटलीस्ट टू गो फॉर द स्कॉलरशिप। लेकिन अगर आप 3 जीपीए से नीचे चले गए हो तो भाई फिर ना ज़हमत करो, फिर फायदा नहीं है एरास्मस में अप्लाई करने का, बिकॉज कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। यस इट डज मैटर अबू बकर, पॉइंट अगेन वही है मेरा। देखो अगर तो आप ये कह रहे हो कि मेरा जीपीए जो है वो यूएचएस के अंदर हो या वैसे भी हो 3 से नीचे है तो डोंट बॉदर अप्लाइंग फॉर अ स्कॉलरशिप। फिर उसका दूसरा रास्ता एक होता है in which you can go for need-based scholarship in one of the countries in Italy, one of the countries that's Italy। और फिर मेरा नहीं ख्याल है कि एरास्मस के लिए अगर ट्राई करनी है तो यू नीड टू हैव मोर देन 3 जीपीए, एटलीस्ट 3 या 3 से ज़्यादा। इट डजंट मेक एनी सेंस इफ़ यू गॉट जीपीए लेस देन 3 एंड यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट, तो वो फिर वो चीज़ बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। साइम अबू बकर और हुज़ैफा, आप लोगों को समझ आई होप आ गई है मेरी बात की। मुझे 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, हाँ जी बोलें। अब 2 बंदे छोड़ के भाग भी गए हैं, लगता है सारी नॉलेज मिल गई है इनको आज। देखो अगर 1-on-1 सेशन चाहिए तो फिर आप लोग मेरे से इनबॉक्स में रब्ता करें, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबकी सुन सकूं और हेल्प कर सकूं इस चीज़ को लेकर। दैट्स व्हाई आई एम कमिंग ऑन कैमरा एंड मैं नहीं चाहता कि मैं कोई मेरे से मेरा टाइम ख़रीदे ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न कि मैंने सोचा कि आई विल मेक अ लाइव वीडियो about the basics for Erasmus Mundus and a little introduction of mine, which I think apparently I have delivered both of the things. And for the rest, I will also record a video on YouTube, inshallah आज नहीं तो कल पक्का inshallah। उस पे I will also tell you guys about the basics and things, and there will be some other vlogs as well, so I'm thinking to start doing that। किसी का अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मेरे साथ ज्वाइन करना चाहता है वीडियो पे तो उसमें भी ठीक है भाई। वीक में कोई फ्री नहीं होते, यहाँ पे सब काम खुद करने होते हैं। यहाँ पे आपने आकर 2-2 किलोमीटर की वॉक विच इज़ वेरी नॉर्मल यहाँ पर करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने खाना भी खुद पकाना है, यू हैव टू क्लीन योर रूम एज वेल, यू हैव टू आयरन योर क्लोथ्स, यू हैव टू वॉश योर क्लोथ्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल, एंड उसके बाद आपने घर भी बात करनी है। तो अगर इन सारे कामों के बाद कोई थोड़ा सा टाइम बच जाता है तो वो ये था जो मैंने आप लोगों को दे दिया टाइम। तो टाइम कोई नहीं मिलता, ये छोड़ दो बातें कि वीक में फ्री कब होता हूँ। वीक में फ्री ब्रो नहीं हो सकते, बहुत काम है। अभी ये दूर के ढोल जो है ना वो सुहाने लगते हैं,
once when you get here, there is like a lot of things that you have to do. It's not so easy. By the way, I'm junior from LMDC thing. कोई मसला नहीं अबू बकर, आप जूनियर ना भी होता है, वुड हैव हेल्प्ड ईदर वे. कोई मसला नहीं है. नाइस टू मीट यू एंड आई होप कि आपका कोई अगर क्वेश्चन हो तो वो क्लियर हो गया होगा. किसी और का कोई सवाल है तो आई वुड बी रियली हैप्पी टू हियर. उसामा इफ्तिखार, कैसे हो? इट्स बीन अ व्हाइल. आई रियली वांट यू टू जॉइन मैन. कैसे आओगे? उसामा इफ्तिखार कैसे ज्वाइन कराएं आपको? ज्वाइन करना है उसामा, बताओ मुझे. अब अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें. आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प. आयशा नदीम भी ज्वाइन की हुई हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा अभी तक. आई थिंक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लें, सो आई कैन हेल्प यू गाइज विद इट एंड आई कैन सॉल्व योर क्वेरीज रिगार्डिंग द एरास्मस मंडे स्कॉलरशिप. फिर इसके बाद एक मैं रिकॉर्डेड सेशन भी कोशिश करूँगा कि मैं रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूँ. आई एम स्टिल इन टू द प्लान्स ऑफ इट. तो अगर खिज़र भाई अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आने के लिए. I'm trying to add if he is free to join. अच्छा, सीवी दिखानी थी आपने. यार पीछे पड़ गए हो. अच्छा, कोशिश करता हूँ. खिजर भाई ज्वाइन कर लेते. इसी बहाने सलाम दो आ जाती है आपसे. आई होप खिजर भाई आप ठीक ठाक हैं. अल्लाह का शुक्र भाई, मैं ठीक हूँ. आप कैसे हैं? ज्वाइन कर लें, आ जाए इसमें ही वीडियो भी. इसी बहाने जो है स्ट्रीम भी चलती रहेगी, इसी बहाने आपसे बात भी हो जाएगी. बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. मेरा कोई इसमें कमाल नहीं है, अल्लाह ताला ने एक मौका दिया बस. आई हैवंट डिड एनीथिंग, इट्स जस्ट अल्लाह जिसने मौका एक दे दिया मुझे एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव इट फॉरवर्ड. नथिंग ऑन माय एंड दैट आई डिड एक्स्ट्रा. बट आई एम रियली हैप्पी फॉर यू. मैं आपका वो लिंक्डइन देख रहा था कुछ दिन पहले एंड माशाल्लाह आपका सही क्लिनिकल ट्रायल्स का जिसको कहते हैं ना एक्सपीरियंस हो रहा है. मजा आया देख के एक तरह से. एंड ऑनेस्टली टू सम एक्सटेंट हमारे सीनियर्स ही एक रीजन है, वन ऑफ रीजंस जिनको देख के थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलती है एंड वी लाइक कि हमें भी कुछ एक्स्ट्रा करना है. दे आर डूइंग सो मच एंड व्हाई आरंट वी. बाकी चीजें तो ठीक है, साथ साथ कांस्टेंट होती हैं, बट ये भी एक काफी मोटिवेशन होती है. जैसे भाई आपका देखा था मैंने. एक और हमारे सीनियर है मोहसिन भाई, मोहिब भाई, उनका मैंने देखा था लिंक्डइन. उमर भाई का, यू गाइस आर गोइंग वे माशाल्लाह वे अबव द स्ट्रीम फॉर अस. लेकिन कोशिश कर रहे हैं. uh, कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं. आई थिंक एवरीबॉडी इज लाइक ओके ठीक है जाने दो. तो एरास्मस का बेसिकली हमारा ये इंट्रो इतना सा ही था. इसके बारे में ज्यादा जो डेप्थ में यही है कि मैं लाइक सीवी दिखा दूं या मैं ऐसा कुछ कर दूं. अब ये मेरा इशू चल रहा है लाइक लैपटॉप का थोड़ा सा.
तो ज़ैफ़ा माज़रत सीवी दिखा नहीं पाऊंगा, बट आई रिकॉर्ड अ सेशन ऑन यूट्यूब एज वेल अभी इसके बाद। तो इंशाल्लाह I'll give you guys a glimpse about my CV on that video for sure। अभी क्योंकि वो रिकॉर्ड करना है तो उसमें थोड़ा सा इजी होगा, इसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। कोई मसला नहीं किसर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया दैट यू एक्चुअली केम टू सी that how I'm doing and you actually congratulated, so I'm good with that। आप कैरी ऑन करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। Okay, Ahmed Beg is watching। Let's make Ahmed Chan। आ जाओ अहमद भाई, आप ही आ जाओ, आप भी नहीं आ रहे हो। हुजैफा सीवी देख के वैसे भी तुमने क्या करना है यार, तुम्हें मैंने बताया यूरोपास सीवी लिखो गूगल पे, एक वेबसाइट निकलती है आपके पास, ठीक है, यूरोपा करके कुछ। यूट्यूब सेशन ब्रो रिकॉर्ड करना पड़ेगा बिकॉज अभी आज यूट्यूब पर लाइव नहीं जा सकते, 24 घंटे का वेट होता है। तो उसको रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा एंड उसका थंबनेल आप बना रहे हैं। यार उस पे तो ऐड हो, कैमरे पे तो हो। तुम्हें मैं कब से ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट इनवाइट। उसको एक्सेप्ट करो, उसको उस पे आओ, वीडियो पे। ना दिखाना मुंह भाई, हाथ रख लो कैमरे पे, आवाज सुना लो। ये तो तुम लोगों के लिए मैंने टाइम निकाला है, स्पेशल वीडियो बनाने बैठा हूँ। सही रहते तुम लोगों का, कहता लाओ पैसे निकालो, है। यार एक्सेप्ट का बटन आ जा, जो आई थिंक। ओके, नाउ यू आर इन इट। अहमद आ गए हो। जहां से मुझे रिक्वेस्ट भेजी है वहां पे जाओ, अभी तुम्हारे पास आ रहा होगा वो। क्या वो है। ये एक्सेप्ट करो यार। अच्छा फेसबुक चलाते हो यार, तुम लोगों को इतना ही नहीं पता लाइफ के अंदर ऐड कैसे होते हैं। एक सेकंड। हम्म। नहीं हुआ है मदद। बाय अहमद। हाँ, क्या हाल चाल है उस्मान भाई, ठीक ठाक है। अल्लाह का शुक्र हो भाई, मेरे दोनों कानों में बजे हो आके। क्या ऑन किया, स्पीकर ऑन किया हुआ है। नहीं 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 नहीं, हाँ जी, मतलब स्पीकर ऑन किया हुआ है। मैं कहा जरा आवाज़ आपको सही तरह से आए, मेरी मुझे आपकी। बहुत अच्छे बेटा। और सुनाओ कैसे हो, कैसी डिग्री जा रही है।
अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक ज़बरदस्त। डिग्री सही जा रही है, बस आखिरी के रह गए हैं 20 वर्किंग डेज और लगे हुए हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के ऊपर। दो दो प्रोजेक्ट हैं, आपको पता ही है, और एक फार्मा टेक का क्लिनिकल का, बस उसी में लगे हुए हैं आजकल और टाइम गिन वही रहे आगे हैं। मुझे अबू बकर पूछ रहा था इसमें ना, सवाल में कि भाई फाइनल में क्या करना चाहिए। मैंने कहा भाई थीसिस पे फोकस करो, एरास्मस पे अभी नहीं करो। एरास्मस हाँ नहीं होगी एक अभी साथ, एक दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी। अभी तो बिल्कुल यही है कि बस, अगर मतलब अभी तो वो फोर्थ ईयर में है ना। हाँ। हाँ तो अभी तो मतलब वो पहले तो फोर्थ ईयर पे फोकस करें। यूएचएस बहुत खतरनाक हुआ हुआ है इस दफा, साफ सी बात है वो तो। नहीं, यूएचएस का यार मैंने ना ये चीज नोटिस की है, थैंक्स हम्म टू सरनेम के यूनिवर्सिटी बन गई है, यूबास बन गया है, हम्म कि यूएचएस is one of the worst places you ever want to study. I'm saying this live, I'm sorry, but yes, apparently that's true. ये हमारे टीचर्स अच्छे थे, ये सर नहीं अच्छे हाँ थे कि सर ने बड़ा सपोर्ट कर दी है, वरना जो जलालत मैंने भुगती है ना, हम्म। ये लाइफ में बोल रहा हूँ, बात मेरे गले पड़ जाएंगी बाद में। जो जलालत यूएचएस में मैंने भुगती थी ना, ऑनेस्टली आई वाज रिग्रेटिंग। भाई वो प्रैक्टिस में बच्चे नहीं उड़ा रहे, तुम लोगों के तो कुछ भी नहीं जा रहे। मेरा पहला साल था, यू एस मे बी डोंट रिमेम्बर, 90 प्लस फेल हुए थे, याद है? हाँ हमारी दफा भी फर्स्ट ईयर में अनॉटमी में ना तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 140 में से कोई 93 सप्लीस थी, 93 94 मतलब सेंस नहीं अनॉटमी के बनती है अंदर। यार, आगे जीपीए अच्छा चाहिए होता है, और मार्क्स एनुअल करके इन्होंने इतना काम खराब यूएचएस ने किया हुआ है ना। आई मीन बस वजह तो इट्स मतलब। बियॉन्ड आवर थिंकिंग कैपेबिलिटीज, पता नहीं क्या चाहते हैं। मैंने उनको जब जाके बताया कि आई एम सिलेक्टेड इन Erasmus and I need my grading scale, they were like what is Erasmus? I'm like bro, हाँ बाबा, यूनिवर्सिटी चला रहे हो बैठ के, आप रजिस्ट्रार हो देखते हैं बस। और आपको नहीं पता Erasmus क्या है। मैंने मैं तो 1 मिनट के लिए सर पकड़ के बैठ गया था, एंड आई वाज लाइक कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ। ब्रो एटीन बस परसेंट फिर भी बेहतर है, हमारा 10% भी नहीं था। मुझे आज भी याद है, इतना खराब हो गया था ना काम, वी बेयरली सर्वाइव्ड इन दैट। अभी जो हमारे क्लिनिकल अभी फोर्थ ईयर के जो सप्लीमेंट्री के पेपर हुए हैं, वो बच्चा इन्होंने डिटेन किया है जो कि मतलब हमारे सोच वो क्या समझ के, कहते हैं, वो ए, सोच अंदाजे में समझ भी के, नहीं सोच समझ के, ओए सोच समझ के बोलना, ये लाइव है, एडिट नहीं होनी था। बाद में वीडियो। नहीं नहीं कोई सीन नहीं, आई लव माय यूनिवर्सिटी, साफ सी बात है, मैं नहीं। नहीं नहीं, देखो, नहीं। एक बात मैं हाँ। ऑन एयर कहने को तैयार हूँ, हम्म। हमारे कॉलेज और फैकल्टी सपोर्टिव रही है, यूएचएस हाँ इटसेल्फ सपोर्टिव नहीं है, एंड वीव बस ये ना सीन इट, वीव कंपटीशन हो सीन इट जाती है। विद वेरी क्लोज आईज। हाँ। हाँ मतलब अच्छा, ये तो है। एरास्मस के बारे में मैंने कहा चलो तुम भी कुछ पूछ लो, तुमने भी कुछ पूछना ही होगा, यू जॉइंट प्रिटी लेट। हाँ जी उस्मान भाई, मैंने पूछना था बेसिकली क्योंकि मैंने ना थोड़ी स्टडी की थी इसके ऊपर, चैवनिंग के ऊपर भी और एरास्मस के ऊपर भी, कि ये अक्टूबर से ठीक अभी है, आगे लाइव होगी इनकी एप्लीकेशंस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चीवनिंग अक्टूबर। ऑलरेडी ओपन है, एंड चीवनिंग में अपेरेंटली आप अप्लाई हम्म नहीं कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं क्यों। उसमें तो मेरे ख्याल से यू एक्सपीरियंस नीड चाहिए टू होता है। हैव 2 years of 2 years of proven work experience after your degree। रूल चेंज सही हो गया सही इस साल। सही। तो मैं ये सोच रहा था क्योंकि मैंने ना एस्टन यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम में वहां पर देखी हुई थी, पब्लिक हेल्थ की डिग्री थी वो, क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड पब्लिक हेल्थ के लीडरशिप, एस्टन बर्मिंघम। जी तो जी 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 उनका जी। इनटेक जो है ना वो 2026 मार्च में है। तो अभी अगर मैं हाँ, करना चाहूंगी तो मुझे नहीं लगता कि मार्च तक मेरे डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होंगे। फेब में अगर प्रो ऑफ होता है तो फिर आते आते जो मैं ट्रांसक्रिप्ट तुम्हें, है। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें अभी क्या बताया? चीवनिंग हम्म, स्कॉलरशिप चाहिए तो यू नीड 2 years of proven work experience that you नहीं नहीं, don't मैं have एरास्मस right की now। बात कर रहा हूँ। यार एरास्मस, नहीं तुम क्या सोच रहे हो, एरास्मस के अंडर कोई सी भी यूनिवर्सिटी आ जाएगी, यू आर थिंकिंग दैट? हाँ ये मुझे ये लग रहा नहीं, नहीं ऐसे नहीं। है। अगर ये होता तो मैं फिर शेफील्ड ना जाता जहां मुझे एडमिशन मिला हुआ था। सही तो मतलब भाई मुझे, इसके अंदर सिलेक्टिव है। मेरी बात सुनो, यूके के हम्म। अंदर जिसका तुमने नाम लिया ना अभी यूनिवर्सिटी का, दिस हाँ जी। एस्टन यूनिवर्सिटी, कार्डिफ, शेफील्ड, हम्म ग्लासगो, हम्म। ब्रिस्टल, सही विंचेस्टर, सही यूसीएल, है।
आई गॉट हम्म एडमिशन लेटर्स इन दैट, मेरे पास अभी भी पड़े हैं। ठीक है। हम्म द रीजन आई डिड नॉट वेंट देयर वॉज एरास्मस इस तरह से नहीं काम करता, पहली बात। दूसरी, हम्म। यूके से, यूके बाहर हो चुका है यूरोप से, अगर आपको ये हाँ पता है। हाँ जी, वो ऑलमोस्ट सारे ही बाहर है सिवाय आइलैंड के कुछ हाँ पार्ट के। जी। दूसरी चीज, जनाबे आला एरास्मस की अपनी वेबसाइट है, एरास्मस का हम्म, अपना एक पूरा कैटलॉग है जिसके अंदर सही है। 200 कुछ मास्टर्स की डिग्रियां लिखी हुई हैं। हाँ हाँ, ठीक है। उनको तुमने देखना है, उनमें से शॉर्टलिस्ट करो जो तुम्हारे रिलेटेड है। यू कैन अप्लाई ओनली इन देम अंडर एरास्मस स्कॉलरशिप। तो उस्मान भाई, अभी मतलब आपको, आप मुझे क्या सजेस्ट करते हैं, मुझे अभी करना चाहिए इसके लिए, क्योंकि अभी तो क्योंकि मेरी डिग्री भी पूरी नहीं हुई। देखो, प्रिपरेटरी चीजें पूरी होनी चाहिए। अब उसमें क्या होती हैं, आइल्स हो हम्म, गया, सही। सर्टिफिकेट्स जो रहते हैं बनने वाले वो हो गए, इंटर्नशिप्स हो गई, हाँ ये हाँ, चीजें पूरे पूरी करो। रिसर्च के ऊपर मतलब जो थोड़ा सा सपोर्टिव काम करो। डॉक्यूमेंटेशन है। हाँ, जल्दबाजी नहीं करो। अभी अच्छा। तुम्हारा फाइनल ईयर चल रहा है। हाँ जी। इस साल अप्लाई ना करो, आई वुड सजेस्ट अगले साल करो। हाँ, मैं भी यही अगले सोच रहा साल था। तक तुम अपनी हाँ हाँ। चीजें पूरी कर लो। अगले साल तक अपनी चीजें पूरी कर लो। फॉर एग्जाम्पल आइल्स की तैयारी करो, अच्छे अच्छे पेपर दो आइल्स का, बिकॉज यू नीड टू हैव अ गुड स्कोर इन आइल्स। यू कैन नॉट, यू, देखो आइल्स महंगा है, सीधी सी बात है। आइल्स ठीक ठाक हम्म एक्सपेंसिव है। साठ हम्म सत्तर हजार रुपए का टेस्ट देना है और उसमें तुम्हारे बैंड आए अगर पांच, क्या हम्म। फायदा होगा उसका। तो तैयारी आप सजेस्ट करेंगे कि आइट की पहले कर ली जाए, कहाँ से, कहीं से अच्छी, किसी इंस्टीट्यूट से, कि खुद ही? यार देखो, मेरा तुम्हें पता है, मैं पैसे खर्चने के मामले में थोड़ा सा कंजूस हूँ इस तरह की चीजों पे। हम्म। मैं तुम्हारी जगह होता, मैं अभी आइल्स की तैयारी करता, साथ साथ मैं अपने थीसिस पे काम करता। मेक श्योर यू हैव अ गुड थीसिस, बहुत मैटर करता है ये। ये जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है। एग्जैक्टली। सही है। हाँ ठीक है। तो वो दोनों, अच्छा, उसके अंदर भी, थीसिस के अंदर भी कौन सा वाला बेहतर होना चाहिए, क्लिनिकल वाला के फार्माटेक वाला? वो दो दो है दोनों, हमारे। दोनों बेहतर होने चाहिए। दोनों ही सही है। ठीक है, हम्म। उसके ऊपर तो मैं लगा हुआ हूँ, कैप स्टडी है, करना है उसको जितना। पब्लिश वगैरह अभी मेरे देखो, नहीं ख्याल से मैं उसको करूंगा कि नहीं, लेकिन कर मैं उसके ऊपर काम मेहनत से रहा करना, हूँ। करना, लाजमी करना, अच्छा। अच्छा, एक और बात थी लाजमी कि करना। अगर आपके जो रिसर्च सुपरवाइजर हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, वो आपको हम्म। अच्छा रेफरेंस लेटर लिख फिर देते हैं कि लाइक इस बच्चे ने रिसर्च के अंदर अच्छा काम किया वगैरह वगैरह, ठीक है, तो वो भी हम्म। मैटर करता होगा इसके अंदर, जहरी बात है। देखो, रेफरेंस लेटर्स, रिकमेंडेशन लेटर एक ही चीज होती है। हम्म। ठीक है। और दो तरह के होते, दो चाहिए होते हैं मिनिमम, 2 से 3 लेटर चाहिए होते हैं। हम्म। अब ये बात मुझसे प्राइवेट में पूछना कि किससे लेना है। ठीक है। एक तो ओके सर ओके। नेम से अगर रिक्वेस्ट करो, अगर सर मानते हैं तो सर से लेटर लाजमी लो। सर के हम्म। लेटर की ज्यादा वर्थ है, सबसे ज्यादा वर्थ सर के लेटर की है। सही है, ठीक है। मैं इसके ऊपर आपसे ठीक है। प्राइवेट में भी बात करूं, डिटेल में, कि एक दो पॉइंट्स हाँ, हैं मेरे मैं मन में जो फिर लाइव इनपुट में हो। बता रहा हूँ, एक एक रिकमेंडेशन लेटर का मैं लाइव बता रहा हूँ कि सर नेम से हाँ लेटर जी। लेना। सर नेम के लेटर की सबसे हाँ ज्यादा हाँ, वर्थ है। सही बाकी है। प्राइवेट में डिस्कस करते हैं। डन है, डन है, डन है, ठीक हो गया। मैं भी पहले यही सोच रहा था, मैंने कहा कि इजी होकर अभी फाइनल ईयर को सी गुजारता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है यूएचएस काफ़ी टफ है अभी, जिस तरह वो हुआ है, तो वहाँ पे ध्यान देता हूँ। फिर अगला जो साल 2026 है ना, उसके अंदर सारी चीज़ें प्रिपेयर करके फिर ट्राई करूंगा 2026 के एंड पे, मतलब अगस्त अक्टूबर में जब आते हैं ये, फुल प्रिपेयर होके, क्योंकि हाँ जाहिर बात है। देखो, नेक्स्ट ईयर भी इन्हीं दिनों में स्कॉलरशिप्स ओपन होंगी दोबारा। हम्म। हाँ, इन्हीं दिनों में ये होगी। भी होगा। अच्छा एक सेकंड, साइम ने मुझे पूछा है कि, अच्छा साइम मेरी बात सुनो यार, इट्स फाइन, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर्टिफिकेट्स हैं, मेन चीज ये मैटर करती है। थोड़ा सा अपना बोलने का स्टाइल और कम्युनिकेट करने का स्टाइल ड्यूरिंग योर रिव्यू
इस तरह से रखो कि आपको सुन के पता चले कि हाँ यू हैव एक्चुअली स्टडीड समथिंग, फेक नहीं कर रहे हो, यू कैन कवर इट। ठीक है, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा कुछ, आगे आप समझदार हो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। ठीक है। हाँ अहमद यार बोलो, आप और क्या हाँ पूछ ये रहे थे? एक तो ये क्वेश्चन था, बाकी मेरा वही था कि अब देखें, अब ऑब्वियसली मेरी ना फर्स्ट ड्रॉप में सप्ली आई, ठीक है। सेकंड ईयर में भी हम्म वही वाला सीन था ऑब्वियसली, ठीक है, मेरा ना एडमिशन रुका था। थर्ड प्रॉफ में मेरी आई हम्म दोबारा, लेकिन फोर्थ प्रॉफ में मेरे बड़े जबरदस्त मार्क्स थे, ठीक है, मतलब क्लास में मेरे लड़कों में मेरे सबसे ज्यादा थे, काइंड ऑफ हम्म। टॉप था। तो ये इन चीजों का उतना फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ये मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। हाँ, ओवरऑल मेरी परसेंटेज जो है वो 70 प्लस ही, ओवरऑल जो परसेंटेज होती है। देखो, ओवरऑल का ही मैं बता रहा हूँ कि अगर हम्म तुम्हारा जीपीए अच्छा है तो इट हम्म रियली मैटर्स अ लॉट। बट अगेन हम्म डिपेंड करता है तुम्हारा जीपीए कितना बना है। अभी फाइनल रहता है तो अभी हम्म थोड़ा सा ऑन द ग्राउंड रहो और मेहनत करो। अल्लाह करे हम्म कि यू गेट अ गुड स्कोर एंड देन यू कैन गो फॉर दिस। बट अपेरेंटली मेरा जो मैंने जो नोट किया है, जितना 3.5 से क्रॉस कर सकते हो तो कर लो। 3.5 के हम्म पास पास रहो तो यू हैव अ गुड चांस टू सिक्योर दिस काइंड ऑफ स्कॉलरशिप। अरास्मस और के अगर लिए स्पेसिफिक बता रहा हूँ, मेरे अपने अरास्मस के साथ साथ दो और स्कॉलरशिप्स थे। एक यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो था इटली, मास्टर्स ऑफ न्यूरो हम्म साइंस के अंदर। एक मेरा था यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास मेडिकल ब्रांच, ड्रग डेवलपमेंट एंड फार्माकोलॉजी, एमएस लीडिंग टू पीएचडी करके थी डिग्री। हम्म आई चोज एरास्मस। मुझे वो दोनों समझ में नहीं आ रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि मुझे एरास्मस उस टाइम पे मिल चुकी थी स्कॉलरशिप। तो वो तो जो बाकी थे मैंने वो भी एरास्मस चूज फुली किया था। कंप्लीट थे? हाँ। तो वो अगर अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास, वो तो यूएसए वाली सीन नहीं है? नहीं, मेरे लिए जो उसका इनिशियल खर्चा पड़ रहा था ना, मुझे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह था, वो काफी पैसे पड़ रहे थे मुझे। सेकंड, सही मुझे सही सही। उसका इस साल अप्लाई दोबारा करना पड़ना था बिकॉज उस टाइम डेडलाइन शॉर्ट थी। प्रोफेसर मान गई थी, हम्म बट उसने प्रोफेसर ने मुझे लाइक स्टाइपेंड वगैरह सारा बता दिया था कि तुम्हारा ये होगा। बट एक मेन इंपॉर्टेंट स्टेप था उसके अंदर, वेस्ट की क्रेडेंशियलिंग करवानी होती है, वैल्यूएशन ऑफ डिग्री करानी होती है। उसका हम्म 4 महीने का टाइम लगता है और मेरे एडमिशन क्लोज होने में 1 महीना रह गया था। दिसंबर की बात थी हम्म, ये, तो मुझे वो सही छोड़नी सही पड़ी सही थी इस वजह से। तो मैं इस सही साल सही अप्लाई सही। दोबारा करता हूँ, उससे पहले ही अल्लाह ताला ने एरास्मस में करवा दिया था मुझे, तो फिर मैंने हम्म कहा यहाँ से भी। और जो सही है। पलर्मो का बताया तो मैंने मास्टर्स ऑफ न्यूरो साइंस का, उसमें बेसिकली स्टाइपेंड था एनुअली 7,000 यूरोस का। हम्म। यहाँ पे एरास्मस में तुम्हें पता है एनुअल जरा ज्यादा है, तो फिर मैंने कहा हाँ, नहीं फिर तो इधर ठीक ठीक है, है। वो जहाँ पे बंदे को सूट कर जाए वो ज्यादा सही रहता है। और एक तो मतलब एकेडमिक्स के साथ साथ मैंने, मेरा वो भी क्वेश्चन था जो मैंने आपसे पूछा भी था, एक्स्ट्रा करिकुलर वाला। वो आपको पता ही है, फर्स्ट ईयर से हम्म। लगा हूँ मैं इधर उधर एक्स्ट्रा नहीं, करिकुलर्स के अंदर। देखो, इट रियली इज गुड, और ये इसका बड़ा, इसकी बहुत वैल्यू होती है। अच्छा, हम्म इटली का था 7,000, ये मुझे मिल रहा था तकरीबन 17,000 के आसपास, तो मैंने फिर इसलिए इसको चूज किया था। हाँ, ये ठीक है, मतलब जाहिर बात है, ये वाली चीजें भी देखनी होती हैं, स्टाइपेंड अगर ज्यादा हो तो उतना बेनिफिट, मतलब उतना ही बेनिफिट है, तो ये सही है, क्या थी अच्छी चीज है। भाई, यूरोप की, जिसे आप कहते हैं ना, दुनिया की सेकंड मोस्ट हम्म प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप में से एक है ये। हाँ जी, कैरोलिंस्का के बारे में जब मैंने वो लिया था ना सेमिनार, सर नहीं वाला, तो उन्होंने मतलब इसको बड़ा हाईली रिगार्ड किया था इस यूनिवर्सिटी को, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट को। मुझे भी अ, तब की यहीं आने की इसलिए आग लगी हुई थी कि सर ने रिकॉर्ड किया और मुझे ये करना है, मुझे यहीं पे जाना है। सर ने तो मुझे याद है, इसको मेंशन करते हुए सर ने कहा था कि जो क्रीम है ना आपके फार्मासिस्ट की, वो यहाँ पर होती है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में। तो मेरे पास यार अभी भी जो कैरोलिंस नोट। का, मैं आपको बताता हूँ, कैरोलिंस्का का जो वर्ल्ड वाइड रैंक है वो इस टाइम 7th है। हम्म कैरोलिंस्का हार्वर्ड और जॉन हॉपकिंस के बाद, अगर आप हार्वर्ड या जॉन हॉपकिंस ऑफ यूरोप का हो ना, तो वो कैरोलिंस्का हम्म इंस्टीट्यूट है। हाँ जी, मेरे पास जो नोट्स भी बने पड़े हुए हैं ना उस सेमिनार के, उसके अंदर मैंने इस वजह से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सर्कल शर्कल मारे मारे हुए हैं मैं, कि भाई ये इस जगह को देखना है।
उसके अलावा एक सर ने न्यूजीलैंड की ऑकलैंड यूनिवर्सिटी थी मेरे ख्याल से, उसका जिक्र किया था। सर ने कहा था वो भी अच्छी है, लेकिन न्यूजीलैंड में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जो कि अच्छी रैंकिंग्स में आती है। तो अच्छा एक सेकंड, तकरीबन अबू बकर पूछ रहा है कि यूएसए वाला कोई अलग प्रोग्राम है या वो रास्ता में आता है? भाई वो अलग स्कॉलरशिप्स होती हैं, वो अलग सिस्टम है। अगर अब इस पे वन ऑन वन सेशन करना है तो फिर राब्ता करें, फिर करते हैं डिस्कस। हर संडे को एक सेशन ईशा के बाद, अच्छा, जबरदस्त सीन। सही। भाई जो वीडियोस मैंने पोस्ट करनी है वो फॉलो करो। अगर वन ऑन वन सेशन चाहिए तो फिर हिसाब किताब डिफरेंट है, सीधी सी बात है। फिर राब्ता करो मेरे से, बात कर लेते हैं उसमें। ईमेल मेरा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जिसका दिल करे कर ले, जिसका नहीं करता ना करे। I'm good with either one। मैंने अपना ईमेल लिख दिया है। वन ऑन वन सेशन करना तो इस पे डिस्कस कर सकते हैं। और जिनके पास मेरा नंबर है, खुदा का वास्ता है इस वीडियो को देख लो ताकि थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। ताकि इसके बाद वो कर ऐसी बातें इधर नहीं पूछते हैं, ईमेल पे पूछते हैं प्रोफेशनली। आई थिंक आप एलएमडीसी के हो, मेरे जूनियर हो, आपको ये बेहतर समझ आएगी बात। यहाँ पे नहीं, हाँ, ये अपना बंदा ईमेल है। में बात करेंगे इस बारे में। हाँ, अपना बंदा है इसलिए कह रहा हूँ ईमेल पे करेंगे बात। हम्म। वरना मैं सही यहीं कह से रहे गायब हो जाना था अभी। उस्मान भाई, पार्शियल स्कॉलरशिप का क्या सीन है? एक और सीनियर है हमारी, वो भी यार देखो, पार्शियल मेरी स्कॉलरशिप बात पे कर सुनो, गई है। मेरी बात सुनो। हाँ जी। अगर तो पार्सल पे जाना है ना, तो मेरे से बात नहीं करो इस बारे में, ठीक है? अच्छा, तो पार्शियल का वैसे होता क्या है? मतलब क्या वो है, क्या सीन है उसका? मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ उसको लेकर कि वो है क्या। यार देखो, पार्शियल स्कॉलरशिप में यही होता है कि आपको इंश्योरेंस दे देंगे, आपको 50% फीस ऑफ कर देंगे, या आपको थोड़ा बहुत स्टाइपेंड दे देंगे फीस ऑफ करके, साथ मेजर पोर्शन आपने हम्म। खुद कवर करना है अपने रहने का और सारा खर्चे का। तो अब सही। मतलब इट डजंट मेक एनी सेंस ना। अगर पार्शियल, ठीक है, अगर पैसे हैं पास तो पार्शियल लेते हुए अच्छे लगोगे। बट पार्शियल स्कॉलरशिप रियली डजंट मेक एनी सेंस। मुझे कितनी पार्शियल ऑफर हुई हैं? मुझे कुछ हम्म। तकरीबन 6-7 पार्शियल स्कॉलरशिप ऑफर हुई हैं, बल्कि ज्यादा हुई थी। मैंने एक भी नहीं सिलेक्ट की थी, बिकॉज जो बाकी अमाउंट मेरी पॉकेट से जा रहा था वो बहुत ज्यादा था। मुझे समझ नहीं आया हाँ, था वो। कंपैरेटिवली वो भी काफी बन जाता है। अगर वो कुछ मतलब $1000 भी हो तो वो वो भी बहुत मतलब काफी ज्यादा बन बन। जाता है भाई, वो बहुत ज्यादा बन जाता है, थोड़ा भी नहीं, वो बहुत ज्यादा और ये बन जो जाता है। अनाटमिस है। और सेंस नहीं, देखो, हाँ मेरे हाँ। लिए सेंस नहीं बनती है उसमें जाना। हम्म। ये जो ठीक है। अरास्मस है उस्मान भाई, इसके अंदर ट्रैवलिंग का भी उन्हीं के पल्ले है। मतलब जो आपने ट्रैवल करना है पाकिस्तान से यार देखो, यूनिवर्सिटी। इन्होंने एक चीज सेट की हुई है अब, 1400 यूरो स्टाइपेंड मिलना है। उन्होंने वो इस अच्छा। हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ है कि आपका 600-700 में महीने का गुजारा हो जाता है, इससे हम्म। ज्यादा नहीं होता। ठीक है, बड़ा भी लगे, 1000 लग गए, 400 फिर बच रहा है। वो जो एक्स्ट्रा पैसे होते हैं वो आपकी ये कवरेज होती है इन चीजों की, जो आप लगा नहीं कर नहीं, जा जो रहे हो। अकोमोडेशन जो है आपको, वो वहां पे उन्होंने प्रोवाइड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट, कि वो आपने स्टाइपेंड से पे करनी है। कुछ प्रोग्राम्स में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है, कुछ प्रोग्राम्स में सही है। आपको अपनी खुद पर रेंट करनी पड़ती है। दोनों केसेस के अंदर हम्म। स्टाइपेंड में से इतने पैसे कट होने ही होने हैं। मतलब कि वो स्टाइपेंड में से काट के बाकी जो होगा वो आपको देंगे। ये सीन है इसमें। हाँ, अगर तुम मैं करते हो कि नहीं भाई मैं खुद ले लूंगा, तो वो आपका पूरा सही है। स्टाइपेंड आपको दे देते हैं, उसमें आपने खुद मैनेज करना है अपने। और आई थिंक हो हम्म। जाता है उसके अंदर, कोई इतना वो मसले वाला सीन नहीं है। मैं हाँ अभी जी, इधर आया हुआ हूँ ना, 1400 में तो हो जाता है। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ बाहर से थोड़ा सा व्यू। मान भी मुझे आप ना नजर नहीं आ रहे यार, ये क्या सीन है? एक सेकंड रुके, मैं देखूं, मुझे आप क्यों नहीं नजर आ रहे? ये ये मेरे बाहर का व्यू है अभी। एक मिनट रुकिएगा, क्योंकि मुझे ना इस टाइम आप नजर नहीं आ रहे, ब्लैक स्क्रीन आ रही है मुझे आपकी। क्या मतलब है? दोबारा ज्वाइन करूं मैं? मुझे अभी ना ब्लैक ब्लैक सी स्क्रीन आ रही है। एक सेकंड, मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। मेरी बात सुनो ना, बल्कि इसको बस वाइंड अप करते हैं ना अब, फिर बात करते हैं हाँ सेशन की। डन। अब काफी लंबा हो गया सेशन भी। हाँ 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 ओके हाँ, फिर, ओके ओके। लेट्स डू अनदर लाइव सेशन नेक्स्ट वीक। और मीनवाइल मैं एक आधी वीडियो रिकॉर्ड करके बेसिक्स की यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। डन है, ठीक हो गया। इंशाल्लाह करते हैं अगले वीकेंड एक और
जबरदस्त सा क्या कहते हैं क्या सेशन। उम्मीद है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच के बाद करेंगे अगले संडे का जो, उसके बाद खुशी खुशी से रात को बैठकर एक सेशन हो जाए। इंशाल्लाह वो ठीक। इंशाल्लाह चलो ठीक है फिर ओके उस्मान भाई, ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफिज ओके, अल्लाह हाफिज।